Hi, Navneet, and thank you for coming in, sir. Hello, sir. It's great to see you here on this Oh, platform. thank you, thank you. आपने सर टाइम निकाला. I know that you've got a very tight and busy schedule, but you've taken the time. Thank you so much for that. So I just quickly brief you with how we are going with this. 20 questions, sir. बस आपके experiences share करिएगा. It will be great for our audience. Sure, sir. Sure. I'll ठीक. try my best to share my experiences. Yeah. Perfect. So, like I already said that for the Merchant Navy domain, this is our second episode. The first episode was more on Merchant Navy as a career and specifically on deck side of things. And in this episode, of course, with you, we are getting into the engine side of things. So in the first section, so I just wanted to understand a little bit on the roles of of people working on the engine side. So, sir, in very simple terms, क्या ये व्हाट डज अ मरीन इंजीनियर डू, क्या करता है एक मरीन इंजीनियर ऑन बोर्ड Uh, शिप? okay. Sir, basically, a marine engineer is responsible for all the machineries which are there on board. Like जहाज ओके. पे बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, मेन हाँ इंजन जी. होता है जो प्रोपल्शन के काम आता है, जनरेटर्स आर देयर, हम्म. boilers are there, and on specific vessels you have different type of cargo loading and unloading systems. राइट. जैसे हम लोग बल्क कैरियर की बात करें तो वहाँ पे हम्म. क्रेन्स होती है, वहाँ पे ग्रैब्स होती हैं। अगर हम ऑयल टैंकर की बात करें तो वहाँ पे बड़े बड़े कार्गो पंप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गो होता है। हम्म. और उसके अकॉर्डिंगली देर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज विच आर देयर ऑन बोर्ड and which requires a regular maintenance, राइट. periodic maintenance is there, and sometimes breakdown maintenance is there, राइट. troubleshooting is there, and then you have to liaison with various third parties, you have to maintain your inventory, you have to maintain your critical spares. So a lot of things are there which a marine engineer typically does on board. और ये सर जो एक डेक ऑफिसर करता है उससे काफी अलग है, एज आई अंडरस्टैंड इट. Yes, you are right. As a deck officer, they are mainly in charge of navigating हम्म. and the cargo loading and discharging. राइट. But in the backside of it, वो चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं, हाँ जी. जहाज कैसे चलता है, मेन इंजन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म. क्योंकि आपको दरिया में देर इज नो वन टू सपोर्ट यू इन द मिडिल ऑफ सी। ऑफ कोर्स. So there are various troubleshooting which we are doing. Also, we need to maintain a stock of minimum spares जो राइट. जहाज के लिए जिसकी जरूरत होती है। और इतनी सारी मशीनरीज हैं तो आप ये मान के चलिए उसमें बहुत सारी ट्रबल शूटिंग चलती है। देर आर मशीनरी विच आर सेमी ऑटोमेटेड एंड सम ऑफ द मशीनरीज विच आर नॉट आई गेट इट सर. ऑटोमेटेड। गेट तो इट. वहाँ पे मरीन इंजीनियर्स दे यूज 24 दे यूज टू वर्क 24/7। हमारे हम्म. शिप पे एक वॉच कीपिंग सिस्टम होता है हम्म. जिसमें हर एक इंजीनियर्स का वर्क एंड रेस्ट आवर्स डिसाइडेड होता है एंड वी वर्क 24/7। गेट इट सर. सो सो मुझे वी आर या। मुझे सर एक बात बताइए. हम्म काम तो सुनने में काफी टेक्निकल और डिफिकल्ट लग रहा है मुझे. सो हम्म आई मीन फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, हम्म। व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू चूज द इंजन साइड ओवर द डेक साइड? सर मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, नॉट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स। व्हेन आई पास्ड आउट इन 2003 फ्रॉम माय स्कूल, एट दैट टाइम मुझे आईआईटी का बहुत ज्यादा भूत था। और then I went to Kota for some time to prepare for IIT. Then later I realized that if this kind of competition is there, and whatever I'm doing in my 12-14 hours of study in a day, and when you are going 12 o'clock in the night and people are discussing the same questions over a cup of tea, राइट. then then I thought that this is not something which is my cup of tea, and I should decide to go in a sector where I can explore new things. I have hands on experience and I can grow on a faster pace. राइट. So from there, I have given my exams for my college. Luckily, I got selected there. I did my engineering from Tolani Maritime Institute from राइट. 2003 to 2007, which is a very prestigious college with यस इट respect इज. to marine engineers. यस इट इज. And thereafter, I started my journey as a marine engineer. एक्सेलेंट. तो सर एक बात बताएं मुझे, ये जो वर्क कल्चर है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाउ समवन हु इज वाचिंग दिस हैज ऑलरेडी वॉच द एपिसोड 1 जहाँ पे उसको डेक साइड को लेके वो काफी अवेयर हो गया है.
इस एपिसोड, बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड आई एम श्योर दे विल बी एब्सोल्युटली एनरिच्ड बाय द इंजन साइड ऑफ थिंग्स. टू बिगिन विद सर, वर्क कल्चर में क्या फर्क है डेक साइड एंड इंजन साइड? डेक साइड को हम लोग अभी भी मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो वी कैन कॉल इट व्हाइट कॉलर जॉब, बिकॉज दीज गाइज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेविगेटिंग, दे आर द वंस दोज हु आर डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज हम्म. at the first, they are the face of the राइट. vessel, राइट. because captain saab, they communicate with the third parties, they are in charge of communication, navigation, all engines, everything will be at their command. राइट. कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, क्या हम्म. क्या चैनल लेना है, वो समझ उनका गया. रहता है. बट अगर आप उसको पीछे से देखें, चीजें कैसे, आपका कार्गो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपको हम्म. कार्गो सिस्टम को कब मेंटेनेंस करनी है, कब उसको आपको रेस्ट देना है, उसके लिए राइट. क्या क्या स्पेयर्स चाहिए, आप उस पे कैसे काम कर सकते हैं, उसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है. हम्म. अगर आपका बॉयलर नहीं चल रहा है, आपको इमरजेंसी में काम करना है, तो हाउ डू यू लाइजन इफ देयर इज गेट एनी इट. टेक्निकल इशू, उसका कुछ रिपेयर नहीं हो पा रहा है, या आपको टेक्निकल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, तो उस पे आपको कैसे काम करना है. गेट इट सर. or or in terms of optimizing the cost of total running of a vessel, हम्म. that lies with the engine part, engineers, because most of the maintenance stuff, like if you see on a vessel, the most precious thing is the cargo. राइट. And with respect to maintenance, if you see, 80% of the vessel is, you can say, steel. राइट इट इज. But the major cost is with respect to the crew and the हम्म. machineries. राइट. Yeah, and there the expertise of a marine engineer or a technical person lies. And if you see after sea, beyond sea, हम्म. if you are an engineer, you will have very good opportunities to work with ports, terminals, and राइट. other organizations as well. परफेक्ट. तो ऐसा सर बोल सकते हैं क्या, टू सम अप दिस सेक्शन, कि ये जो डेक साइड का काम है, कैन आई सेफली से इट इज अ लिटिल बिट more management oriented, probably a little more glamorous as compared to the machine engine side of things, which is more rigorous and not, it is not the front of the ship, it is something which is happening at the back completely. Yes, you can say that, कि आपका जो भी डेक ऑफिसर्स है, they are basically in charge of the cargo operations, they are in समझ charge गया of सर. navigating of, राइट. बट एट द बैक एंड काम कैसे होता है, काम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम्म. वो आपका सब इंजन से हो कम्युनिकेशन, रहा है. वो सब इंजन से हो रहा है. ठीक है सर, थोड़ा सा हमको अब आप इंजन रूम के अंदर ले चलिए इस सेगमेंट में. हम्म. मैंने कुछ ये सवाल जो हैं, ये सब जो जितने भी सवाल हम बनाते हैं, कुछ तो हमारे रिसर्च होते हैं, और कुछ हम्म. हमारे ऐसे सवाल होते हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जानना चाहते हैं. तो हमारे रिसर्च के अंदर द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैड, दैट वेन एवर यू टॉक टू एन एक्सपर्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क देम दीज क्वेश्चंस. तो ये बेसिकली टेकिंग अस इनसाइड द इंजन रूम. अब सर क्या है, जो ये इसको सुन रहे होंगे वो बहुत टेक्निकली इंटेलिजेंट होंगे भी, लेकिन मैं अब प्रिज्यूमिंग कि वो लोग बिगनर्स ही होंगे, बच्चे होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे. तो आप मुझे उसी भाषा में समझाना, नॉट टू टेक्निकल. What systems and machines does a marine engineer typically handle on board? In very simple, please, अंडरस्टैंड कि मैं एक लेमैन हूँ, मुझे समझा दीजिए, लोग समझ जाएंगे. ठीक है सर, आई विल ट्राई टू कीप इट एंड लाइक एज सिंपल एज या. इट कैन बी. राइट सर. सर, मैं एज ए चीफ इंजीनियर अपना मॉर्निंग शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं हम्म. क्या क्या चीजें करता हूँ, कैसे करता हूँ, चीजें हम्म. कैसे काम करती हैं. हम्म. सो नॉर्मली 7 o'clock यू गेट अप, आप उठते हैं, देन यू डू योर रूटीन. 7:30 यू डू योर ब्रेकफास्ट. सो 7:45 और समथिंग, देन यू गो टुवर्ड्स द इंजन रूम. इंजन रूम जहाज के, मतलब आप ये कह सकते हैं, जो मेन एरिया होता है उससे नीचे होता है, बिकॉज ठीक है. इंजन इज बिलो द वाटर लाइन. राइट सर. तो हम लोग अपने इंजन कंपार्टमेंट में जाते हैं. बिफोर गोइंग देयर हम लोग अपना जो भी सेफ्टी गियर्स है वो सब पहनते हैं, बॉयलर सूट, हेलमेट, वो सब रहता है. देन 7:45 हम लोगों की एक मीटिंग होती है. वहां पे जो भी इंजन रूम से रिलेटेड जो भी मशीनरी है, जैसे बहुत सारी मशीनरीज होती हैं वहां पे, मेन इंजन कैसे काम कर रहा है, पूरे एक दिन में, लास्ट येस्टरडे से आज तक मेन इंजन में हमें क्या ट्रबल आई, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू हैव टू सी. जनरेटर, सपोज जहाज पे 3 जनरेटर हैं, तो हम्म. आज कौन सा जनरेटर चलेगा, कौन से जनरेटर की मेंटेनेंस करनी है. ओके. डेक पे पावर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल जनरेटर चलाना है या नहीं चलाना. आपके पास कौन सा फ्यूल है, आप कौन से एरिया में जा रहे हैं, वहां पे क्या फ्यूल चेंज ओवर की कोई रिक्वायरमेंट है, आपको बॉयलर चाहिए. तो
there are different machineries in the engine room, like main engine, generators, purifiers, boilers, your cargo machinery, your HVAC, heating, ventilation and air conditioning system. राइट, क्योंकि वो जहाज पे वो सब लोग हम ही मेंटेन करते हैं. एब्सोल्युटली, Then your sewage treatment plant, then your waste incineration unit, then there are other machineries as well. There are cargo machineries, hydraulic pumps. तो इन सब पे there are various person those are in charge of these machineries. So morning में हम लोगों का वो एक planning discussion रहता है कि आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं, आज क्या operations हैं, आज हमारी कोई इमरजेंसी ड्रिल तो नहीं है. तो राइट. हम लोग उसको सुबह प्लान करते हैं, मे बी 8 to 8:30. देन उसका जो भी पेपर वर्क होता है उसको कैसे आइसोलेट करना है, उस पर कैसे काम करना है. आपके पास जो क्रू है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आज तो हम इस इस मशीनरी पे पे सर काम एक सवाल करेंगे. आता है मेरा, हाँ. हम्म, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग. अब आपने बता दिया कि मशीनरी में तो यू जस्ट गिवन मी द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर. ठीक है, मशीन से लेके ब्रॉयलर से लेके जनरेटर से लेके एवरीथिंग एल्स. अब हम्म, सर इसको करने के लिए कितने हम्म. लोग होते हैं उस मशीन साइड में, और उसकी हायरार्की कैसे सेट होती है? ठीक है सर. टिपिकली मैं एक ऑयल टैंकर की बात करता हूँ, ऑयल हम्म, प्रोडक्ट कैरियर की. हम्म, 23 से 24 लोग होते हैं, कुछ कुछ हम्म, शिप्स में 22 भी होते हैं, हम्म, डिपेंडिंग अपॉन द ऑटोमेशन. हम्म, द हायरार्की इज चीफ इंजीनियर, हम्म. सेकंड इंजीनियर, चीफ थर्ड इंजीनियर के इंजीनियर. नीचे सेकंड इंजीनियर, सेकंड सेकंड इंजीनियर. इंजीनियर थर्ड इंजीनियर. यस. सेकंड इंजीनियर के नीचे थर्ड इंजीनियर. सेकंड इंजीनियर इंचार्ज होता है बेसिकली ओके. ऑल डे टू डे मेंटेनेंस का. राइट. And chief engineer is the overall in charge of all राइट. the machineries which exist on board. थर्ड इंजीनियर. Third engineer is in charge of typically generators and boilers. उसकी हाँ, मतलब हर एक रैंक की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं जो तो ये सर, मशीन. हाँ. ये जो थर्ड इंजीनियर हैं इनके नंबर्स ओनली वन थर्ड इंजीनियर ऑन बोर्ड, कि एक यस से ज्यादा नॉर्मली. होते हैं? यस नॉर्मली एक थर्ड इंजीनियर ही रहता है. एक एंड थर्ड देन वी हैव इंजीनियर, वन एक सेकंड फोर्थ इंजीनियर इंजीनियर. एंड वन चीफ इंजीनियर एंड वन फोर्थ इंजीनियर वन एज फोर्थ इंजीनियर या. वेल. सो ओके. नाउ अभी आपके जहाज के ऑटोमेशन पे डिपेंड करेगा हम्म. कि वहां पे फोर्थ इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है या है नहीं, या और नहीं है? जहाज के शेड्यूल पे डिपेंड करेगा. बिकॉज कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट पोर्ट ऑपरेशंस करते हैं हम्म, या उनका ऑटोमेशन थोड़ा पुराना हो गया है. तो हम्म. उन जगह पे वी ऑल्सो कीप फोर्थ इंजीनियर एंड ओके. वी ऑल्सो कीप अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, टीएमई बोलते हैं जिसको, या कैडेट, इंजन कैडेट बोलते हैं. इंजन कैडेट, जो डेक साइड पे कैडेट होता है वैसे इंजन साइड पे. राइट राइट सर. तो So, for all the operations and all the machinery that is done and the functioning and the movement, चार at the officer level and one at the trainee level. This is it? Yes, total we have maximum 4 engineers and one trainee. And also we have, हमारे पास कुछ क्रू रहता है, जैसे कुछ मोटरमैन, तीन Okay. मोटरमैन और Okay. एक फिटर एंड एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है. कुछ जहाजों में नहीं होता है, कुछ Okay. जहाजों में होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी स्ट्रक्चर. ऑल राइट, परफेक्ट सर. अब सर ये शिप की जो सेफ्टी होती है, इसमें इंजन साइड के लोगों का कितना रोल होता है और डेक साइड के लोगों का कितना रोल होता है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ द शिप? Sir, safety is, it depends upon the individual, but also it is a joint responsibility of captain and chief engineer. जो ऑल जो राइट. जो लोग जहाज पे कंपनी का सेफ्टी कल्चर एसएमएस इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज दे आर द पर्सन दोज हु आर इन चार्ज इन देयर डिपार्टमेंट. गेट इट. कि जहाज पे सेफ्टी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, लोग हेलमेट पहन के काम कर रहे हैं नहीं कर हम्म, रहे, हम्म. लोग प्रॉपर पीपीई पहन के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर कंपनी की तरफ से कुछ वी नीड सम रिसोर्सेज तो वो अवेलेबल हैं या नहीं है, और हाउ इफेक्टिवली वी आर कम्युनिकेटिंग विद द शोर बेस्ड स्टाफ सो दैट द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन बोर्ड. गेट इट, गेट इट. वैसे सर आपने मुझे ये एक्सप्लेन तो कर दिया है कि एक टिपिकल वर्किंग डे कैसा होता है, बट फिर भी इन जनरल नाउ दैट वी नो दैट देर मे बी थ्री ऑफिसर्स, इंजन ऑफिसर्स, और देर मे बी फोर. ठीक है, 24 आवर्स का वॉच रहता है, आपने बता ही दिया है. कुछ सपोर्ट स्टाफ के अंदर आपके पास कैडेट हो गया, या आपके पास फिटर्स हो गए, या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हो गया, ये हो गया. आप मुझे सर एक इंजन साइड ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिपिकल डे कैसा होता होगा, कितना घंटा काम, कितना घंटा आराम, काम पे किस चीज़ पे फोकस, थोड़ा अगर आप मुझे बता पाए तो. सर नॉर्मली एक नॉर्मल वॉच कीपिंग जहाज पे हम लोग
हर एक इंजीनियर का टाइम पीरियड डिवाइडेड रहता है। लाइक फॉर सेकंड इंजीनियर वो 4 से 8 वॉच करेगा, हम्म। एंड देन 8 to 10 और 8 to 11 डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल, उसका जो भी प्लानिंग रहेगा, बिकॉज ही इज द इंचार्ज। तो सुबह राइट। जब जब सब लोग आते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग हो जाती है, 4 to 8 में वो अपनी वॉच करता है, देन ही हैज द इंटायर प्लान ऑफ द डे। हम्म। एंड 8 o'clock वो फोर्थ इंजीनियर का टाइम होता है। ओके। So in that way, they will get minimum 2 to 3 hours of overlap with each राइट। other, so that ओके। whatever isolation you have to do, whatever planning you have to do, if an engineer needs any support, so that planning part is taken care by the second engineer. राइट। Then for 8 to 12, fourth engineer is doing the watch, and हम्म। 1 to 3 he is doing his overtime. So in इट्स the ओवर टाइम। overtime he is doing the routine overhaul of all his machineries, whatever is there. हम्म। And if he needs any support, then 12 to 4 थर्ड ईयर की वॉच चालू हो जाएगी, ओके। then he will have a support in in his गेट machineries इट, गेट whether he इट। needs support. So 12 to 4 अपना थर्ड इंजीनियर काम करेगा, हम्म। then 4 to 6 he will have a overtime. ओवर By टाइम। that ओके। time आपके सेकंड साहब आ जाएंगे। राइट। राइट। So everybody gets a overlap with the senior engineer, राइट। also with the crew, राइट। so that if they need any assistance, हम्म। suppose आपको कोई हैवी आइटम उठाना है या कुछ गेट आपको इट, स्पेयर्स गेट इट। मूव करने हैं, so उसमें आपकी हेल्प होती अच्छा, है। दिस इज also सो also नाइसली प्लान्ड also the chief engineer is there throughout the day, maybe थ्रू आउट from द 8 डे। to 5 6, so he is ओके। also there to supervise the things. थिंग्स। Also electrical officer is there, and our crew, like your fitter or your electrical officer हम्म। and your motorman, they are also available throughout the day. They are also doing the same, like ओके। their watch of 4 hours, so 4 hours morning and 4 hours in the night time, और प्लस थोड़ा सा ओवरलैप जो प्लस आपको दूसरे ओवर ऑफिसर टाइम, के हाँ, साथ जो करना। उनको उनकी मशीनरीज को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। गेट इट, गेट इट। इसमें एक कंसेप्ट परफेक्ट। और है सर, इसमें एक कंसेप्ट और है कि इफ यू आर ऑन अ यूएमएस वेसल, यूएमएस इज अनमैन्ड शिप। ओके। तो जिन शिप्स में थोड़ा ऑटोमेशन अच्छा है, हम्म। उन शिप्स में वी ट्राई टू ऑल द इंजीनियर्स डू डे वर्क, सो दे वर्क फ्रॉम 8 o'clock to say 6 o'clock, 7 o'clock। ओके। वो सब साथ में काम करते हैं, एंड देन दे टेक अ राउंड, उसमें एक ड्यूटी इंजीनियर होता है। तो वो लोग 6 बजे वो नॉक ऑफ करते हैं, एंड देन दे ट्रांसफर द अलार्म to one of the cabins. ओके। So if there is any alarm in the engine room, the duty engineer will get an alarm. ओके। He will go down. He will communicate with the bridge. He will go down. He will see what is the problem, whatever is there. And this And you said is for the UMS, the yes, unmanned yeah, ship. this is for the unmanned vessels. Then again 9 o'clock, 9 to 10, he will take around the duty engineer, and Hmm. he will transfer the watch to his cabin. So if there is any alarm coming in the night time, Get it. he will accept the alarm, and accordingly he will come next day late or whatever. तो आज के डेट में सर जो शिप्स चलती हैं, जो वॉयज होता है कार्गो Hmm. मूवमेंट, इसमें कितने Hmm. मतलब कन्वेंशनल शिप्स होते हैं और कितने जो आपने बताया ये जो अनमैन्ड वेसल्स सर होते हैं? अभी मोस्टली मोस्टली जहाज, इफ यू से 70% तक अनमैन्ड शिप आ गए हैं, बट राइट। ड्यू टू द लेवल ऑफ ऑटोमेशन विच हम्म। द ओनर रिक्वायर्स, बिकॉज हम्म। ऑटोमेशन में सर इनिशियली ड्यूरिंग द न्यू बिल्डिंग टाइम it is very expensive, and also ओके। the maintenance and upgrade is also very इज expensive. एक्सपेंसिव। सो ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द ओनर के राइट। कुछ कई बार ऐसा होता है कि जहाज यूएमएस होता है, फिर भी ओनर्स की पॉलिसी होती है कि वो उसको यूएमएस उसको नहीं चलाते, ट्रेडिशनली चलाते हैं। गेट ट्रेडिशनल इट, वे में गेट इट, चलाते हैं। गेट इट, गेट इट। एंड समटाइम्स अगर आपके पोर्ट भी अगर 6 8 10 घंटे में आ रहे हैं या 2 दिन में हम्म। आ रहे हैं, तो फिर हम्म। उतना रेस्ट ना तो ड्यूटी ऑफिसर्स को मिल पाता है, ना ड्यूटी इंजीनियर्स को मिल को मिल पाता है। पाता है। आई गेट इट। तो उस केस में हम लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा इंजीनियर रखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू मेंटेन वॉच। परफेक्ट सर। अब सर लोग काफी अब तक एजुकेट तो हो गए होंगे, द लिसनर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। थोड़ा सा सर क्या है द नेक्स्ट सेगमेंट, आई वांटेड टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, द एंट्री रोल्स इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड फाइनली ऑल्सो अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड कम। तो इसमें सर मुझे बड़ा बेसिक सा सवाल था कि ये क्या एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए ये मरीन इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए? सर मरीन इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए यू शुड हैव लाइक पीसीएम,
PCM 10+2 यस में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम, हाँ मैथमेटिक्स। हाँ पीसीएम होना चाहिए. हम्म। एंड ऑल्सो nowadays वी हैव एग्जाम कॉल्ड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो यस। इनका एक सेंट्रलाइज एग्जाम होता है. यस। एंड उसमें यू कैन गिव योर प्रेफरेंस एज अ डेक ऑफिसर और इंजीनियर ऑफिसर. राइट। एंड क्योंकि एंड डेक ऑफिसर में भी रिक्वायरमेंट इज PCM, इट्स फिजिक्स यस केमिस्ट्री यस मैथ्स. यस यस यस. Okay, and there you can give this preference of whether you want to go into engine or you want to go to the करेक्ट. deck side. Okay. राइट सर. तो एक सर बात बताएं, ये 10+2 PCM हो गया. ये मैंने आई वाज आल्सो रिसर्चिंग, ये जो डिप्लोमा होता है 10+3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, वो भी क्वालिफाई होते हैं क्या? Sir, I am not sure regarding that diploma, but initial days we had a few diploma courses. Then later they have to do 1 year pre-C training. राइट. जो लोग जैसे जो बच्चे मैकेनिकल में भी करके आते हैं, still हम्म. they can join merchant navy. हम्म. They will have to do 1 year uh, training course, राइट. and then they will undergo the basic trainings like we have our STCW courses, हम्म. and then they can join the merchant navy. ठीक है. Alright, so but basically they come from the 10+2 PCM side or maybe also from 10+3 mechanical engineer side. उनको अपना 1 ईयर का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो आपने बोला सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम होती है, दैट इज इंडियन मैरीटाइम IMU, आई गेस Correct. ना, इंडियन Yes, मैरीटाइम IMU. यूनिवर्सिटी, Yeah, IMU. where they can choose between the deck side and the engine side. And then once they get selected with the particular this thing, उनको अपना प्रीसी करके and then they must might be getting the placement. ये प्रोसेस होगा Correct, sir. होगा. Correct. ओके. इसमें सर एक बात बताएं, जो भी लोग इसमें आ रहे हैं, लेट्स से कोई 10 स्टैंडर्ड का बच्चा है जो इस चीज़ को सुन रहा है, या जो 11th का बच्चा सुन रहा है, पेरेंट्स सुन रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर मैकेनिक, आई मीन मैकेनिकल एप्टीट्यूड होना बच्चे के पास कितना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? You have raised a very very valid point, sir. Because कभी कभी हम भी ऐसा फील करते हैं कि बच्चा यहाँ पे वो मतलब मर्चेंट नेवी का नाम सुन के आ तो गया है, बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि ये फील्ड उसके लिए नहीं है. नहीं है. तो माय माय जेन्युइन एडवाइस इज, जो बच्चे मैकेनिकल में अच्छे हैं और जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं, बिकॉज वंस यू जॉइन द मर्चेंट नेवी यू विल गेट अ लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज वेसल पे सब सैटेलाइट से मैनेज होता है. सही बात है. सो ये चीजें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. कभी कभी बच्चों को लगता है कि उनकी सोशल लाइफ थोड़ी सी सेक्रीफाइस हो रही है. हम्म. तो जो बच्चे अपने हाथ से काम कर सकते हैं, जिन लोगों को अपने हाथ काले करने में कोई तकलीफ नहीं है, एंड दोज गाइज दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग, बिकॉज जहाज पे कभी कभी ऐसा भी हुआ है, हम लोगों ने 30-40 घंटे बिना सोए हुए भी काम किया है. राइट. देयर इज सम इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, और आपके इंस्पेक्शन हो रहे हैं, और यू आर रीचिंग सम क्रिटिकल पोर्ट. सो आई विल नॉट से इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, but life is difficult, and the person who is joining the merchant navy, he should be mentally prepared for that कि मुझे at least 10-12 घंटे तो दिन में काम करना पड़ेगा. And hopefully if I am lucky enough, I can go out, I can go ashore, I can see new places. राइट. But yes, काम करना पड़ेगा, there is no doubt, because there are only 3 persons, as I said you earlier. राइट. अगर उनमें से एक भी काम नहीं करेगा करेगा तो नहीं and चलेगा. somebody is not up to the mark, then इट विल it नॉट is वर्क very आउट. difficult, it will not work out in that way. डेफिनेटली. तो इसका वैसे सर मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब मुझे मिल ही गया. मेरा अगला सवाल ये था कि किसको मर्चेंट नेवी डेक साइड में, मतलब ये इंजन साइड मरीन इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहिए. सो यू ऑलमोस्ट आंसर्ड इट. तो मैं जो समझा हूँ सर आपके बात से, पीपल विथ 10+2 PCM बैकग्राउंड, Hmm. they should have decent aptitude towards mechanical skills and aptitude, and the ones who are willing to put in the effort, not looking at the glamour of merchant navy but the effort of merchant navy, should be the people who should come in. अदरवाइज सस्टेन करना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि सर मैं कई लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने शुरू किया मर्चेंट नेवी और 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद मर्चेंट नेवी को उन लोगों ने छोड़ दिया. ऐसे कि Yes, आप में sir. भी कई Yes, लोगों को आप भी yes, जानते होंगे सर. yes, you are very right, sir. Even I'll tell you my story. So like after doing my class 4 examinations, I was there in Ahmedabad for 6-7 months, राइट. and luckily I had my COC and everything in place. And later on, my wife only told me that okay, now you go to sailing, it's better for you to just achieve your dreams, राइट. and then you come back.
So I did my class 2, class 1, became chief engineer, and then a technical superintendent. So it depends upon your personal point of view, your family support. Right. But of course, the field is demanding, and that's why Very you have a very good remuneration. Asian as well. Yeah. So you have to lose something to get something. ऑफ कोर्स सर. सर थोड़ा सा ये इसके पाथवे के अंदर ही रिलेटेड, थोड़ा सा इसके इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज और एग्जामिनेशंस की बात कर लें थोड़ा क्या, जिससे हम्म पेरेंट्स और बच्चों को थोड़ा समझ में आए. हम्म सो व्हाट आर द मेन इंजन साइड प्री सी कोर्स अवेलेबल इन इंडिया, जो आपने प्री सी कहा था ना, प्री हम्म सी SE, PRE, yes, yes, प्री सी मतलब दरिया में जाने के पहले के yes. कोर्सेज. तो ये मेन सर इंजन साइड के लिए कौन से मेन प्री सी कोर्सेज थोड़ा सा आप बता देंगे? सर, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एज अ रेटिंग्स और एज एनी सीमैन यू विल हम्म. हैव टू डू द बेसिक कोर्सेज लाइक PST, PSSR. ये 4-5 कोर्सेज होते हैं हमारे, वो करने पड़ते हैं. हम्म. उसके बाद आप जहाज पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. हम्म. But as you know, to join as an engineering officer, you will have to complete either a degree, हम्म. say mechanical diploma plus 1 year pre-C, or a प्रीसी. 4 year mechanical plus 1 year pre-C, ओके. or a typical marine engineering degree like Tolani or राइट. DMET, राइट. or IMU Chennai, which is हम्म. MET. राइट. So these are the institutes, or RL Institute, or there are other institutes as well. MI is there, so they are providing you a full-fledged degree with all these courses. ओके. So you can apply, you go to their websites and you हम्म. can apply there online. IMU ओके. का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता कॉमन है. एंट्रेंस होता है, राइट? यस, यस. तो उसमें उसके हिसाब से मेरिट बनती है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड द काउंसलिंग. परफेक्ट सर, दिस मोर और लेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सर देयर समथिंग कॉल्ड GME आल्सो, इसके अंदर GME. दैट इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर. ओके, तो ये सो हाउ सर दिस डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से बीटेक इन मरीन sorry, इंजीनियरिंग? graduate mechanical engineer. इंजीनियर, हाउ इज इट Yeah. डिफरेंट फ्रॉम बीटेक इन लेट्स से मरीन इंजीनियरिंग? Sir, marine engineering is specialized in ओके. marine only, हम्म. but we do have engineers from mechanical. Then they do a pre-C courses diploma for 1 year, and राइट. then they join with us in इंजन the साइड. same process. ओके. So if you talk about the examination, there are certain exams like Class 4 Part B, which is exempted for the guys, those who are coming from a marine background. मरीन बैकग्राउंड. ओके. Yes, ओके. yes. But in view of joining the merchant navy, the basic requirement is same. ओके. ऑलराइट सर, एक बार सर GME का फुल फॉर्म फिर बता देंगे? Sir, it's graduate mechanical engineer. ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर. और सर ये हाँ. IMU CET का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें पूरा मिला के? सर, दैट इज द एपेक्स बॉडी. पहले ये जो इंस्टीट्यूट था वो सब अलग अलग थे, जैसे तोलानी था, हम्म. देन एमेट था, हम्म. RL इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस था, राइट. एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DMET था. हम्म. But later on, all these now they are coming under the preview of IMU. IMU. ओके, तो Yes. और IMU now, एक सेंट्रल एग्जाम हो गया इसके लिए, yes, मतलब now द इनका मोस्ट भी इम्पोर्टेंट. कॉमन टेस्ट होता है इनका, हम्म. और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. ऑल राइट. एक सर बात बताएं मुझे, पेरेंट्स और बच्चे while they are selecting an institution, let's say they want to get into marine engineering, they want to go merchant navy में, क्या गलती करते हैं टिपिकली सिलेक्शन के टाइम पे? देन सर, आपको देखना है कि फॉर द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है. अगर हम्म. आपने बच्चे को मरीन इंजीनियरिंग में डाला है, देन बच्चा खुद क्या करना चाहता है. मे बी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे बैचमेट्स थे जिन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली, and then they did a sailing for only 3 months, and some of them they did not even see the vessel, छोड़ दिया. and then they changed over. So और सर सर सिलेक्शन के टाइम पे क्या गलती करते हैं लोग जब एंट्री लेवल होता है? तो जैसे मान के हम्म चलिए, आपने बोला एक तो IME हो गया जो मेन हम्म सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट करा रहा हम्म है, फिर अलग हम्म अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, मरीन हम्म इंजीनियरिंग का रूट है, GME का रूट है. तो लोग क्या एक ऐसी गलती करते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं भी, जहाँ पे वो अटक जाते होंगे उनकी गलती की वजह से? सर, आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट बेसिस अपॉन योर परसेंटेज, हम्म. एंड देन द प्लेसमेंट. उसका इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या फैसिलिटी वो दे रहा है, उसका हम्म. फर्दर स्टडीज में इफ यू वांट टू गो अब्रॉड,
उसका क्या टाई अप्स है, वो हम्म। डिग्री भी रिकॉग्नाइज हो रही है नहीं हो रही है, इफ नहीं यू हो आर रही है। मूविंग टू अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हम्म। इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज। राइट। सो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी रैंकिंग होती है, खुद का इसमें एक। सर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं क्या, जो का जिनका बहुत ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता होगा? सर, अगर देखा जाए तो जब ये तोलानी स्टार्ट हुआ था, इट वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम्म। उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट 90 लेट 90s। ओके। तो वहां पे खाली एक ही कॉलेज हुआ करता था, डीएमईटी, हम्म। जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज था। राइट। एंड देन फिर आईआईटी के लोअर रैंकर्स जाते थे, बट दैट टू उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी, वेरी लिमिटेड वेरी वेरी कैपेसिटी। वेरी लिमिटेड। सो आई थिंक 96 97 के आसपास our institute has started, Tolani, and that was the first college affiliated by BITS Pilani, अच्छा। and in private sector. इन द प्राइवेट and सेक्टर। and if you see, then after that RL Institute has started, then MET had started, because people saw the opportunities in the marine field. राइट। And from say 2003 4 to till now the growth is exponential. in this industry. Fair Yeah. enough. So moving on to the next segment, I wanted to talk about the career growth and the salary reality in this particular industry, because merchant navy is considered to be a place जहाँ पे salaries वगैरह अच्छी मिलती हैं. So how does sir the career progression typically happens in the marine engineer? Start कैसे करते हैं, कितने साल में कहाँ पहुँचते हैं? Sir, after you pass out from the college, some of the college they provide you internship, say 4 months or 5 months on हम्म। board. हम्म। Then that time you get a stipend. Then you come back to your college, finish your degree, हम्म। and join them as a trainee marine engineer. राइट। Then with the trainee marine engineer, this thing you can do a minimum sea time is 6 months now. ओके ओके। Then you have to appear for your exams. That हम्म। exam is called MEO class 4. हम्म। Then MEO, you do your classes, you do your exams, get your license. License is called COC, Certificate of Competency. ओके। So there are three certificate of competencies with respect to engineers, which is MEO class 4, MEO हम्म। class 2, and MEO class 1. राइट। So there are now, when you do your class 4, after class 4, passing out your class 4, in certain rank experience, there is a minimum C time. ओके। Suppose you have to do say 36 months after class 4 for appearing to a certain exam. राइट। Then you do your class 2 examination. Again you come onshore, you do your classes, you do your refresher courses, you appear for your exams. There are written exams, there are oral exams. राइट। Then you clear your exams and get your next level COC. हम्म। Then with a certain सर्टिफिकेट level ऑफ कॉम्पिटेंसी, ओ competency, सी। yeah, ओके। yeah, that is called COC. And with respect to the vessel on which you are serving, like if you are serving on a tanker, in tanker also we have different kind of tankers, like we have crude oil carrier, we have हम्म। product tankers, we have chemical tankers. For certain kind of categories you will have to get additional there are additional requirements, like आपको dangerous cargo का certificate आपके पास तो इन होना टर्म्स चाहिए. ऑफ सर्टिफिकेशन और इन टर्म्स ऑफ सी टाइम भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि सर्टिफिकेशन के लिए? सपोज आप किसी जहाज पे टैंकर पे सेल कर रहे हैं, तो हम्म। अगर आपको टैंकर पे सेल करना है तो आपको मिनिमम आपके पास टैंकर का बेसिक कोर्स होना चाहिए जूनियर राइट। रैंक पे. राइट। देन टैंकर का इंडोर्समेंट होना चाहिए. देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम. ओके। ओके। तो एक बार सर मैं समाप्त करता हूँ, जितना मैं समझा हूँ कि आपका पढ़ाई खत्म हुआ, मे बी आपने इंटर्नशिप किया, यू केम बैक, यू कंप्लीटेड योर कोर्स एंड देन यू ज्वाइन एज ए द क्या बोलते हैं द ट्रेनी। उसके बाद ट्रेनी से लेके चीफ इंजीनियर बनने तक दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक है आपका सी टाइम और दूसरे हैं आपके कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। राइट। करेक्ट सर. और वो आपका सब. इसका मतलब पढ़ाई जो है वो तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी बंदे की? सर, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती. नहीं होती। एंड इन टुडेस competitive वर्ल्ड, इवन आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सो पढ़ाई स्टिल कभी स्टडिंग। खत्म नहीं होती. और बट यू हैव टू कीप योर स्किल सेट अपग्रेडेड. राइट। एंड दैट्स व्हाई, और लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती सर जीवन में. एक बात बताएं सर, मैं समझ गया, एकदम सही बात है, और इस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रही है। एक सर ट्रेनी से, या मान के चलिए एक फोर्थ इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनने का जो ये जर्नी होगा, विच इज इंक्लूसिव ऑफ सी टाइम कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन,
कितना समय सर लग सकता है इन टर्म्स ऑफ सर इयर्स? टिपिकली टिपिकली मैं अपने कैसे बताता हूँ, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 2007. हम्म। Then 2009 I did my MEO class 4. राइट। Then 2014 I did my MEO class 2. ओके, ये हो 2017, गया, 5 साल का फर्क हो गया। हाँ, and 2017 I did my MEO class 1. ओके। ओके। सो अभी आपको सिर्फ लाइसेंस मिला है, आपको जहाज राइट। पे कमांड नहीं मिली है। कमा, क्योंकि उसके लिए सी आप, टाइम चाहिए आपको। नहीं सर, बिना सी टाइम के तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। एग्जाम ही नहीं दे सकते हैं, अच्छा वो जी। तो एक अलग चीज अच्छा, हो गई। मतलब कोर्स और सर्टिफिकेशन के बाद भी कमांड मिलने के बीच में भी थोड़ा समय होता होगा मतलब। यस दैट इज अ कंपनी रिक्वायरमेंट। आपकी एलिजिबिलिटी हाँ। क्या है, आपकी अप्रेजल क्या है, गेट इट। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। तो 10 से 15 साल सर, 12 से 15 साल बारह सेफली? साल हाँ, 10 से 12 साल आप मान के चलिए, आपको इफ लगता है। इफ एंड दिस इज फॉर अ पर्सन जो टाइमली अपने कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और एग्जाम्स क्लियर कर रहा है। जो टाइमली अपने एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं एंड अदरवाइज गेटिंग तो इट प्रमोशंस ऑन कैन टेक, टाइम। दे आर गेटिंग, अदर इट कैन टेक लॉन्गर देन दैट एज वेल। आपको 60 साल की उम्र के चीफ इंजीनियर भी मिलेंगे, अच्छा, इज आपको इट? 60 साल की उम्र के सेकंड इंजीनियर भी मिलेंगे, हाँ, और आपको 35 साल की उम्र के चीफ इंजीनियर भी मिल ये भी मिल जाएंगे। जाएंगे। यस, ओके यस, इट ओके, नाउ डिपेंड्स, वेरी इट वेरी डिपेंड्स। क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। मतलब नॉट ओनली फॉर me but I am sure for everyone listening, they would now be able to see through this industry in a very different light। क्योंकि सर क्या होता है, इंफॉर्मेशन, आज के डेट में लोग मुझसे ना इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ यार इंफॉर्मेशन तो अबंडेंस में है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंटेड है, दूसरा इंफॉर्मेशन आपके लिए कस्टमाइज नहीं है, और तीसरा क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है तो वो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। ठीक है। और बाकी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो आपको एजेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स की मिलती है। तो असली में कोई भी एक प्योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा मिसिंग रहता है, अगर आप देखें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। इन्फ्लुएंस और एजेंट्स के सर इंफॉर्मेशन से हमेशा बचना चाहिए। इंटरनेट के इंफॉर्मेशन के ऊपर 100% रिलायबिलिटी कभी नहीं रखनी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन इज नॉट कस्टमाइज टू योर रिक्वायरमेंट, वो इन्फॉर्मेशन को आपको एसिमुलेट करके समझने में भी बड़ा समय लग जाता है। एंड सर दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव of me conducting these sessions. I just got an opportunity to sum up what I do and why I do. So मैंने बता दिया, मतलब for you and for the audience, कि हम करते क्यों हैं ये चीज़। आई मीन व्हाट इज द गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएट कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर। ऑल राइट। दैट्स करेक्ट सर। या एक सर थोड़ा सा ये सैलरी प्रोग्रेशन समझाएंगे क्या बच्चों को? पेरेंट्स को ज़्यादा वो रहता है इसका कि कैसा, सबको मालूम है सैलरी अच्छा है, डॉलर्स में मिलता है लेकिन एक बार फिर भी। Yes, sir. Let me, discuss the salary as well. So when you join as a fourth engineer, I don't know right now about the fourth engineers, but when I joined, it was around 3,400 or 3,600 USD. ओके। I'm talking about 2010. ओके। Then when you join as a second engineer, the typical salary would be in the range of 10,000. ओके। Then when you join as a chief engineer first time, it would be in the range of say 13,000 or something. ओके। ओके। But most of the companies they pay you only when you are on board. ऑन So बोर्ड। they don't consider the time. Suppose आपने एक साल में 4 महीने ही किया है, तो तो चार महीने आपको की चार पगार महीने की मिलेगी। 4 महीने की पगार मिलेगी। ठीक है। अगर आपने 6 महीने किया है तो 6 महीने की पगार मिलेगी। गेट इट। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग सर, ये जो सेलिंग से मुझे याद आया, as per Indian government tax laws, most of the seafarers they try to sail more than 6 months in a year ताकि वो to get एनआरआई a स्टेटस हो जाए NRI status मिल जाता है सर। तो उससे पूरा टैक्स बच जाता है सर। उससे आपका टैक्स बच जाता है इफ यू कंप्लीट 183 डेज आउट ऑफ इंडियन वाटर्स ऑन अ फॉरेन गोइंग वेसल। तो मतलब 365 दिन में आप 180 दिन के ऊपर बाहर कर लो, 183 डेज, 183 डेज 183 आप डेज। बाहर कर लो, तो जो आपको मान के चलो एक सेकंड ऑफिसर को 8,000 या 10,000 डॉलर की जो सैलरी मिल रही है फॉर वॉट एवर मंथ्स, इन दिस केस ग्रेटर देन 6 मंथ्स, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री हो जाता है सर। ये सर क्या है, मर्चेंट नेवी सर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, या तो वो लोग जाते हैं, मतलब मैं कैसे कहूँ, मतलब आई डोंट वांट टू पुट पुट दिस थिंग एज अ सेकंड दिस थिंग, लेकिन लोग इसको एज अ कन्वेंशनल करियर ऑप्शन प्रेफर नहीं करते, बिकॉज इट इज़ अ हार्श लाइफ, राइट? दरिया में रहना, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, अनसर्टिनिटीज, शादी होने के बाद में तो और भी, फैमिली, मैरिज। द पीपल हु गो टू मर्चेंट नेवी आर द वंस हु आर रियली लुकिंग आइदर फॉर एडवेंचर और दे आर लुकिंग फॉर मनी। जो मेरे समझ के अंदर दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल मर्चेंट नेवी ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, राइट सर?
हेलो। Sir, can you hear me? या आई कैन हियर यू सर, फाइन, Yeah, परफेक्टली। yeah. तो मैं Sir, ये I कह lost रहा you in between. मैं सर ये कह रहा था, या तो पैसे के लिए या तो एडवेंचर के लिए, इस दो चीज के लिए लोग जाते हैं मर्चेंट नेवी में, सही बात है? सर, पैसा एक अलग चीज है. एडवेंचर इज ऑलरेडी, दैट इज देयर. हम्म। And you get to know different kind of people, you meet different kind of people. राइट। Then you develop a skill to communicate, and get the things going. You राइट। work as a team, you राइट। work as a leader. बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करना पड़ता है. ऐसी कंट्रीज में हम लोग जाते हैं जहाँ पे हम्म। कम्युनिकेशन की दिक्कत है, आप हम्म। लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं. हम्म। ऑल्सो आपको कुछ चीजें स्टोर स्पेयर्स या वट एवर आपको अरेंज करना है, आपको फॉरेन नेशनलिटी के साथ काम करना है, आपका क्रू फिलिपिनो है. राइट। तो हाउ यू जेल अप विद पीपल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट। परफेक्टली ऑल ओनली, राइट सर। हाँ, ओनली इश्यू इज थोड़ा सा जो यंग एज जनरेशन है, वहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा है आज ज्यादा की है। डेट में. राइट। एंड लाइक थोड़ा सा हाथ से काम करने का जो चलन है वो पहले से थोड़ा कम हुआ है. कम हुआ है। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए मरीन इंजीनियर, मैं अपने जूनियर्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो आपको अपने हाथ काले करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिकॉज डर्टी हैंड्स मीन्स क्लीन मनी. ठीक है सर। सर दिस पर्टिकुलर जो आपने चीज कही टेक्स मी टू माय लास्ट सेगमेंट, विच इज अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर रेलेवेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब सर ये जितना भी ऑटोमेशन वगैरह इस इंडस्ट्री में आ रहा है, उससे सर मरीन इंजीनियर्स का रोल कुछ चेंज होगा गोइंग फॉरवर्ड? ऑफ कोर्स सर, अभी जो लेटेस्ट जो ऑप्टिमाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजेशन और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, सो दैट इज आल्सो कमिंग टू मरीन सेक्टर. ऑल्दो वी आर अ बिट रेसिप्रोकेटिव. हमारे यहाँ कोई भी चीज लेट इम्प्लीमेंट होती है, जैसे राइट। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो हम लोग डिकार्बोनाइजेशन को लेके बहुत बात करते हैं, नेट 50, नेट जीरो की तरफ हम लोग जा हम्म। रहे हैं. तो दूसरी इंडस्ट्री में ये ऑलरेडी चालू हो गया आज से 4-5 साल पहले, बट अब ये मरीन में, बिकॉज ये एक हमारा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, तो वो भी चालू हो रहा है. तो हम्म। वेसल्स पे नए नए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आईओटी सेंसर्स आ रहे हैं, देन एआई बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन शेड्यूल्स आ रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें हमारे फील्ड में भी हो रही हैं, जिससे हम ट्राई कर रहे हैं कि, और जैसे वेसल का जो भी टर्न अराउंड टाइम है उसको कैसे कम किया जाए, पोर्ट राइट। की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, तो एमिशंस कैसे कम किया जाए. इसका वजह सर रोल्स, मतलब जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो वही रहेंगी, बस रोल्स थोड़े बहुत शायद मेरे ख्याल से चेंज हो सकते हैं कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट, यू आर वेरी ओके। राइट. और फाइनली सर, मैंने थोड़ा स्ट्रेट सवाल है, इस मरीन इंजीनियरिंग सस्टेनेबल करियर, लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी फॉर समवन? Yes, of course, if you can work with your own hands, you can you have the skills of troubleshooting, and you can take it up as a challenge. This field is for you, and going forward, going beyond the sea, on the shore based roles also, people they prefer marine engineers also. Okay, excellent sir. Sir, with this I have covered all the questions that I had, and I really enjoyed the entire process. It has enriched me so much as an individual. I'm sure that the parents, the children, and the schools and educators who get an opportunity to go through this entire video, उनका जो टेक और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट मर्चेंट नेवी एंड स्पेसिफिकली द मरीन, द इंडियन साइड ऑफ थिंग्स, वुड बी एनहांस्ड मल्टीफोल्ड सर, एंड थैंक यू सो मच. बट बिफोर आई लेट यू गो सर, एक छोटा सा मैंने वो बनाया, क्या कहते हैं, रैपिड फायर आपके लिए, जिसके अंदर आई वांट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है सर? Okay, sir. ओके. सो वन वर्ड दैट फॉर यू वुड डिस्क्राइब लाइफ एट सी. Adventurous. Okay. Engine room or the bridge, which fascinates you more? Engine room. Okay. The most exciting moment you have ever experienced at sea? First time when I crossed Panama Canal. Okay. One quality every merchant navy professional must have, specifically those working in the engine side of things. Leadership and teamwork. Excellent. One final, sir, message for students who are considering career in merchant navy in the engine side.
अगर हाथ काले कर सकते हो तो आ जाओ। Okay, wonderful, wonderful, sir. Thank you, sir, so much. I have enjoyed this thing, and I'm sure you must have liked the entire process of sharing your information with us. This information, sir, is going to be consumed by thousands of students and parents in schools, and I'm sure that they will be highly benefited, and they will all be thankful to you for this. Thank you so much, sir, for coming in. Thank you, Ambrish ji. Thank you so Thank much. And you. it was a very, very, interactive discussion with you. Thank you so much. Thank you, sir.